बोलो तो हाँ नहीं होगा। ध्यान से सुनना बेटा, जो भी कुछ बोले, हो सकता है कुछ पॉइंट आपको समझ में आए, कुछ पॉइंट समझ में। हाँ, और मुझे खुद नहीं पता कौन सी स्पीच किस टॉपिक पर बोलने वाली है, पर जो भी कोई यहाँ आए कुछ भी स्पीच बोले और उसके थॉट्स के अगेंस्ट आपके कोई थॉट्स हैं, तो स्पीच पूरी होने के बाद अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अंटिल डोंट ट्राई टू कमेंट, ओके। सो नेक्स्ट, लग रहा है। Hello friends, good morning everyone. Today I will here to deliver a speech on a very sensitive and considerated topic, that is marriage. What is marriage? Why should we do it? Is it compulsory to all? I think we should talk about it because it is the second biggest decision of our life after the career. Now I am not saying that marriage is wrong or right, but it's absolutely wrong to forcefully marry by sacrificing your dreams, desires and leaving your studies. And it's also important to talk because recently you have seen many of murder cases have happened in India all because of marriage. Do you think what is the reason behind it? Oh, I think it is all due to the lack of maturity and marriage at very young age. And it's another reason is also our parents, because they pressurize their children to get married because for the happiness of society. When their children don't want to marry or marry with another person. Here they start forcing them to marry. So, marriage is a burden of responsibilities, and marriage means that one girl who never be allowed to go outside from her house, and now she is sent to sleep in a room with a stranger. Why? Because society wants this. For the happiness of society. When a girl asks to marry, then her parents do not allow to. When a girl asks to study, then her parents do not allow to send her 200 kilometers away from her house. But at the same time, they send her 2000 kilometers away from her house. Why? Because for the happiness of society and for marriage. Now, भूल गई है बहुत. So I'm not saying that marriage is wrong or right. If you want to marry, then you will do. So marriage मुझे नहीं हो रहा, बस अगली पूरा लगा सही चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। मैं आपके साथ हूँ, बोले मैं भी देखना चाहता हूँ, बहुत परेशान किया लोगों ने, कर ले yes. I know what I am saying that is weird for you, but I don't want you all are agree with me. I am just expressing my opinion here. So marriage is a burden of responsibilities, and nobody teaches us how it is important to have independence for us first. Marital harassment, marital rapes and marital murders are also the problems that get from marriage. So if you want to free from this, then you will have to independent first. I am not saying this is only for boys or girls. This is for both. So first you will have to be independent. Nobody teaches us how it is important to we have independent. We are kept in dark. We told us that be beautiful and dress up. बस हो गया. बहुत बढ़िया. देखो अब इसी स्पीच को इन लोगों को एक बार हिंदी में भी बताओ. कुछ लोग जैसे वीडियोस को देखते हैं उनका ये सर समझ में नहीं आई, सर ने हिंदी में बता दे. कोई नर्वस की टेंशन है ही नहीं, ठीक है कि नहीं. अपन यहाँ बस प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास धीमे धीमे सफल होता है, ठीक है. झुग्गी झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता, तुरंत बन जाते. महल बनने में टाइम लगता है, ठीक है. तो जो भी तुमने बोला, ठीक है, एक बार इस चीज को पूरा इंग्लिश में हिंदी में बोल के बताओ. इस बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुली, जैसे तुम्हारा शुरू से था. मैं नहीं बोल रही, मेरे जो मन में आ रहा है हाँ, वो बोल रही वही बोलना चाहिए, बस उसको फिर से एक बार हिंदी में बोलो ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं हमारे, जिनको शायद इंग्लिश में थोड़ी समस्या है, वो भी इस बात को समझ सके. अभी मतलब आपका अभी जो टीनेजर टाइम चल रहा है, इसके कुछ टाइम बाद ये होगा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन आएगा जो कि मैरिज. आपके जो पेरेंट्स हैं वो फोर्स करेंगे शादी करने के लिए. उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आपकी पढ़ाई चल रही लेकिन वो फिर भी फोर्स कर रहे हैं कि शादी करो. अगर किसी की पढ़ाई पूरी भी हो गई है और वो अपने करियर में है तो भी उसको फोर्स किया जा रहा है, सोसाइटी फोर्स कर रही है. तो क्या ये सही है?
आपकी देखो ये कंपलसरी नहीं है, अगर किसी का मन है करने का तो वो करे, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोली, लेकिन अगर किसी का मन नहीं है, वो पढ़ाई करना चाहता है या फिर अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो पहले अपने जो लाइफ के गोल्स हैं उन्हें पूरा कर लो। उसके बाद जैसे कि कईयों का मतलब जो वर्ल्ड है उसको घूमना है, अब वो नहीं चाहता मैरिज करना है कि मतलब करनी ही है शादी, तो ये जरूरी नहीं है। और लड़कियों के लिए स्पेशली क्या होता है, उनकी जो पढ़ाई को छुड़वा के शादी करने के लिए उन्हें फोर्स कर दिया जाता है। ठीक है, वो एडजस्ट कर लेती हैं कि शादी के बाद कुछ अच्छा होगा शायद, लेकिन तुम है ना उस लड़की के लिए अपनी पूरी लाइफ उसको मतलब ऐसे परेशान रखते हो, उसको पढ़ने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते हो, लेकिन फिर सडनली मतलब किसी स्ट्रेंजर के साथ उसको सोने के लिए कैसे अलाउ कर देते हो। पहले तो तुम्हें अगर वो लड़की किसी लड़के को देख ले, उससे नॉर्मली बात कर ले, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये समझ नहीं आता ये क्यों है, एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ में आता, मैं जो देख रही हूँ बस वही बोल रही हूँ। और क्या होता है ना सडनली कि लड़कियों को अगर वो अपने घर पे परमिशन मांगे थोड़ी सी भी दूर पढ़ाई करने के लिए तो उसको रोका जाता है, लेकिन फिर उसको तुम कहीं भी पटकाते हो, फिर देखते नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो बोलती भी है घर पे तो उससे बोला जाता है कि एडजस्ट करो, हम भी ऐसे ही रह रहे हैं, पिटो थोड़ा। तो क्यों इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलना है, पहले तो तुम लोगों को मतलब इंडिपेंडेंट होना है अगर तुम इन सब से फ्री होना चाहते हो तो। आपको समझ में आ गया हिंदी में क्या कहा गया? ठीक है, हाँ आप बताओ इससे रिलेटेड किसी कोई कमेंट, कुछ पॉइंट्स। सीधी सी बात एक समझ में आई होगी आपको, मैरिज इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग दैट यू शुड डू और यू मस्ट डू। ठीक है, और एक्चुअल सच बात यह है, ये बात हकीकत है कि आजकल चाहे ड्रम में भर रहा हो चाहे वो पहाड़ से पटका जा रहा हो, एक्चुअल इसमें कुछ ना कुछ कमियां पेरेंट्स की भी है। इस बात को पेरेंट्स बुरा मानेंगे और देखते भी हैं, सोच रहे होंगे क्या सिखा रहे हैं बच्चों को या क्या कर रहे हैं, सब कमेंट भी हो सकता है कर दे। बट मैं चाहूँगा उसको कुछ सोचने से पहले थोड़ा सा बच्चे ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में एक बार सोचो। उन लड़कियों ने ये जो भी कुछ कदम उठाए गलती थी, उनकी बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का कारण भी तो सोचो कि आखिर ये क्यों उठाए। एक्चुअल समस्या ये है कि इंसान चाहता कुछ और है, उसके विपरीत कुछ उसे फोर्स करके करा दिया जाए। समझ में आ रहे हो? मान लो मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ, कोई जबरदस्ती कटहल खिला रहा है मुझे, क्या वो मन से अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अब एक्चुअल ये जितने भी लोग स्पेशली लव मैरिज वाले केसेस ही हैं, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, जो उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है, उनकी भले ही शादी कहीं और करा दी, उनकी टेंशन नहीं, उनके आराम से कट रही है। लेकिन जो पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और अब उसकी किसी और से करा दी गई, उसने कई सालों तक अपने मन में विचार बनाए, सपने सजाए उसके साथ, अब तुमने पूरे सब चकनाचूर करके इसके साथ कर दिया, तो वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। फिर वो डिसीजन नहीं ले पाता क्या सही है क्या गलत है, फिर उस समय पे जो भी दिमाग में आया वो कर डालता है। इसीलिए बोलते हैं कि पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? खुद इंसान। इंसान अपनी जानवरगिरी पे आता है तो फिर वो सही गलत भूल जाता है। तो इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी ये सोचना चाहिए कि एक बार पूछ लिया जाए बच्ची से या लड़के से कि क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हें ये पसंद है। लेकिन आजकल पिताजी क्या करते हैं, तुमसे नहीं पूछा, चुपचाप बैठो, हम डिसाइड करें क्या करनी है कि नहीं करनी। स्पेशली अर्बन रूरल एरियाज के पेरेंट्स। आज से पहले तो ऐसा होता था कि बाबा ने जुबान दे दी कि वहीं होगी तो वहीं होगी, बचपन में जुबान दे आए, वो और भी ज्यादा वश था। अब फिर भी जमाना बदला है, अब ऐसा हर परिवार में नहीं है। अब पहले पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा तुम्हें पसंद है कि नहीं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण भी हाँ करके चले आते हैं कि भैया कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है। और एक्चुअल माता पिता का इंटेंशन तो यही रहता है कि हमारी बच्ची या बच्चा खुश रहे, कोई अपने बच्चों के लिए बेकार नहीं चाहता। बट समस्या यह है कि वो इस समाज के तले दबे हुए हैं, समाज क्या सोचेगा इस चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? कई बार लड़की को लड़का पसंद है, भले ही उसका कास्ट का है, फिर भी उसके पिताजी नहीं करने दे रहे, उनके बाबा नहीं करने दे रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम ढूंढोगे उससे हो सकता है, इससे क्यों नहीं हो सकता? ये चीजें थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए उन लोगों को। हाँ, वो उनको ये जरूर देखते हैं कि लड़का कुछ करता है कि नहीं, ये चीजें होनी चाहिए। कि आज तो ये, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में डिसीजंस कुछ हम पागलपंती में भी ले लेते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे। तो ये भी सोचना चाहिए, घर वालों को सोचना पड़ेगा क्या ये डिसीजन ले रहा है सही है, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा।
वो भी सोच के समझ के घर वालों को डिसीजन लेना पड़ता है, दोनों साइड से सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स के हिसाब से भी और बच्चों के हिसाब से भी। तो आपस में जब बातचीत की जाए और दोनों समझदार हो, एक दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी हो, तब उसका जो कंक्लूजन निकले वो डिसीजन थोड़ा सही माना जाएगा। फिर उसमें कुछ कमियां रहती भी है तो एडजस्टेबल रहेंगी, लेकिन केवल एक तरफ की सुनी जाए, दूसरा पक्ष सुनाई ना जाए, तो क्लैशेस होने पक्के हैं। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। उसका 12th हो चुका है, समझ लो, उस लाइन में आ रही है वो। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है। आस पड़ोस वाले जिनका 12th हो चुका है, जितने भी रिश्तेदार या पड़ोसी घरे आएंगे, सबसे पहले यार ये मोड़ी थे है बारह है तो रिश्तों में घर पर देखोगे क्या नहीं, क्या पेट में कौन सी पी रही देख लेंगे घर में, तुम्हें क्या दिक्कत है? हर घर में आने वाला पेरेंट जिसकी लड़की 12th पास कर चुकी है, पक्का पहला सवाल जवाब उनका यही रहता है। होता है कि नहीं? लड़कों के लिए पहला सवाल क्या है कि जो कब डर रहे हो कि नहीं भाई, चप्पल चटका रहे हो, मुंह पे बेइज्जती। फिर वहां लड़का आपसे अगर वो कुछ काम की कहे, लड़का मानेगा उसकी बात? मन करेगा कि चाय रखी है, या उठा ले या पिए नहीं देता। होता है कि नहीं? तो आजकल समस्याएं बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति है, और सच बता रहा हूं, इंसानों को समझ नहीं है। केवल बड़े होने से समझदारी नहीं आता, हर बड़ा इंसान समझदार हो, उसे सलाह लो, बिल्कुल मत लेना। एक इंसिडेंट बताता हूँ छोटा सा, आज से 3-4 साल पहले की बात है। मैं किसी गांव में बैठा हुआ था, किसी पेरेंट्स के यहाँ पे, वहां 3-4 लोग आए और नातेदार राम 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 राम, बैठ गया उसकी खटिया पे, उसका लड़का अंदर से चाय नाश्ता बनवा के लाया, चाय वानी पी रहे हैं। मैं भी वहीं बैठे कि हमें मारसा में पढ़ाते हैं, लड़िए छोटी भाई है जी, बड़े भाई मोड़ा पढ़ाते हैं जी, तो राम राम करिए। मैं भी बैठा रहा हूँ, मैंने बैठे हैं तो मैं उनकी बातें सुन रहा। वो कहते हैं कि ठाकुर साहब को रिश्तों बताओ मोड़ी के लिए जी, अपने नातेदार रिश्तों देख भी आए, वो बढ़िया मोड़ा हुए तो बताओ, अच्छा घर बताओ। अब वो का के मान के देख ले और कहा भाई तूने मैं सबको बतना ने नहीं को बताते, हम देख रहे थे बहुत दिन से भटक रहे हैं, परेशान हैं। और उन्होंने 15-20 मिनट बात करी और चाय वा पी के चले गए। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बुजुर्ग। उनके जाने के बाद फिर उसने गाली बेटी और जे वो, और अपनी भाषा में जो भी गाली होती मन में दी। माने जे कंजरा, मैं अपनी भाषा में बताऊं, उसका कहना ये था, इन कंजरों को जी मेरी मोड़ा दिखाई ना दे रहे, 3 मोड़ा है जी बड़ो मोड़ा त्याले चाय नाश्ता पानी लेके आओ है, शुद्ध है, 6 फुट को है, शरीर बढ़िया है, और हम ते कह रहे हो ठाकुर साहब अच्छी छापे ते आई, तो जाके ले ब्याह के लिए कहना कह रहे हैं क्या नातेदार है? पहले तो पूछना चाहिए कि अपने लड़के को करोगे कि नहीं। जिसका लड़का कुआरा है उससे पूछ रहे को मोड़ा बताओ को दूसरों, मतलब तुम उसके लड़के की और उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है? कोई लड़की कुआरी हो उस घर में, और उस घर में ये कहो कि कोई, और तुम जब कर सकते हो उसी कास्ट के सब कुछ है, उसे ये कहो कोई बढ़िया सी मोड़ी बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि त्याई मोड़ी बेकार है। इनडायरेक्टली ये नहीं कहना होगा। उस व्यक्ति को कितना बुरा लगा होगा कि मैं बैठा हूं यहाँ अभी, मेरा लड़का तुम्हारे सामने है, चाय पानी नाश्ता करा रहा है, तुम्हें दिख रहा है, और मुझसे पूछ रही। तो वही बात हुई कि मेरी मिठाई की दुकान है, मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताओ रसगुल्ला कौन सी दुकान बढ़िया मिलते हैं, और मैं खुद रसगुल्ला बेच रहा हूँ। कितनी गुस्सा आ गई, थारी आके मोहम्मद जो पहले टेस्ट कर ले। उसने मुझसे कई सी बता रहा, उस वक्त बात दिल पे लगी यार, वास्तव में आदमी कितना मूर्ख हो चुका है। आ रहा है, सम्मान से बैठ रहा है, ठाकुर साहब कर रहा है, सब कर रहा है, और उसी का रिश्तेदार था वो कोई, ठीक है, और लेकिन उससे ये बात पूछ रहा है। मैंने कि वो तो बढ़िया है, बुजुर्ग आदमी, समझदार है, कंट्रोल है, कोई और होता गाली देने लगता अभी तक। बट उस समय पे क्या पेरेंट्स नहीं कह पाते। और लड़कों के लिए कई बार ऐसी समस्या होती है, लड़कियों का क्या रहता है कि जहां रिश्ता अच्छा लगा देख के करे आए, लड़का वाला कभी किसी से कह ही नहीं पाता। लड़का कुआरा ही बैठा रहेगा, उसकी औकात नहीं, कह दो कि कहते ब्याह करवा दो, या उसका बाप कह दे नहीं, सम्मान से इज्जत के साथ बैठा रहता है। फिर होता क्या है, फिर आती है मजबूरियां। आसपास के रिश्तेदार कहते हैं उम्र ज्यादा हो गई, जे हो गया, ब्याह ना रहा है। फिर वो क्या है, मजबूरी में बाप जाता है, लड़की हो चाहे लड़का, लड़की की 24+ हुई तो मजबूरी में फिर करके आता है। 24+ वालों की लड़कियों की मजबूरी में शादी होती है कि यार ठीक है मिल गो, ठीक है ले करम दो। तो ये क्या है, फोर्सफुली। फिर उस समय पे जो मजबूरियों में काम हो रहे हैं, तो फिर वो मजबूरी जैसे ही होंगे। होता है कि नहीं? शादी के लिए तुम्हें पता है किसी से हमारी दोस्ती भी करे 2 मिनट के लिए नहीं बनती कभी कभी, और किसी इंसान को तुम 24 घंटे के लिए कमरे में छोड़ रहे हो, उससे नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े आपस में होंगे कि नहीं, और क्लैशेस होंगे, पूरा एक परिवार नहीं। शादी में अगर क्लैशेस हुए तो 2 खानदान बर्बाद होते हैं, लड़के वाला भी, और ये मत सोचना केवल लड़के वाले बर्बाद होंगे, लड़की वाले बर्बाद दोनों होते हैं, क्लैशेस दोनों घर में रहते हैं। तो ऐसे डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए।
और स्पेशली लड़का लड़की की रजामंदी से। सही है कि नहीं? लड़की जिस लड़के को दोस्त भी ना बनाए उसे हस्बैंड बना के बिठा दिए, हंस रहे हैं, शकल सूरत के है नहीं, लड़की का मैच ही नहीं कर रहे, उसे बस हस्बैंड बना दिए। क्या वो उससे कभी इज्जत से प्रेम से बात करेगी? कभी नहीं। या खूबसूरत लड़के को ये बेकार सी लड़की दे दी गई जिसके वो लायक थी नहीं वो उस लड़के के, क्या वो उससे अच्छे से कभी पेश आएगा? फिर वो बात अलग है कि नेचर अच्छा है, किसी को कॉम्प्रोमाइज करना आता है कि चलो ठीक है हमारे पिताजी जितना था एडजस्ट किया, कर लेते हैं, अच्छी बात है, ये संस्कारों वाली बात है, फिर भी कोई एडजस्ट कर रहा है तो। लेकिन हर किसी के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि उस चीज को झेल सके। तो कुल मिला के इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये निकला, डोंट फोर्स एनीवन टू डू मैरिज। शादी के लिए किसी को फोर्स मत करो। और देखो सबकी प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। सामने वाला सोचता है कि अरे ये तो इतना है, इसको ये चाहिए होगा, नहीं, उससे पूछो तो सही क्या चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, लड़कों से भी और लड़कियों से भी। फिर कहते हैं कि मोड़ी शर्मा रही है, शर्मा की तो थी, वो अगर कछु कह दे तो मजा लेने लगे होगे, ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या है, जब भी ऐसे डिसीजंस हो सोच समझ के। और सबसे बड़ी बात उसने क्या बताई अभी कि अगर अपने हिसाब से लाइफ स्पेंड करनी है तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वरना आप किसी और के अकॉर्डिंग ही दुनिया जिंदगी भर चलते रहोगे। ये बात हकीकत है। अगर तुम्हारी लड़कियों की नौकरी लग जाए तो पिताजी आपको इतना फोर्स शायद ना करें, क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ कर पा रहे हो, दुनिया क्या कहेगी बाहर में जाए, तब आपकी ज़्यादा सुनी जाएगी। सेम लड़कों के साथ भी, लड़कियों का मत सोचना, अगर आप कमा धमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है। बात शादी की नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको पूछा जाएगा। अगर आपके जेब में पैसा होगा, आपका करियर सेट होगा, तो आपके पास कुछ नहीं है, आपको साइड में कर देंगे, कोई सलाह भी नहीं मांगेगा। लड़कों से स्पेशली ध्यान रखना, बिना पैसों के लड़कों की समाज में कोई अहमियत नहीं है। आपने नोटिस किया होगा अपने चाचाओं के साथ, चाचा ताऊ, आपके परिवार में जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है फिलहाल, या सक्सेसफुल नहीं हुआ है, घर का कोई भी डिसीजन हो, उसके डिसीजन को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, हल्के में लेते हैं सब। और जो पैसा कमा रहा है वो जो डिसीजन ले ले उसको सब एग्री कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास वो पावर है। और रियलिटी पैसा मैटर करता है। कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं खरीद, अरे पैसा है, सर्वाइवल के लिए पैसा है। हाँ, पैसे के लिए पागल नहीं होना, ये भी बात सही है, लाइफ भी एक चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए सोचें इस बात पे।